ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਦੇ 6 ਜ਼ਖਮ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਪਿੱਠ, ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਕੂ ਲੱਗਿਆ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਫ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਡਕਟ ਰਾਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਸੀ ਡਕਟ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 6 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜ਼ਖਮ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਸੀ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਕੂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਫ ਤੇ 6 ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਫ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਜਰੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਫ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਚਾਕੂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਬੇਟੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਫ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਫ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਲੀਮਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਫ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਲੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਡ ਲੀਮਾ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਡ ਲੀਮਾ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਡ ਲੀਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੇਡ ਲੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ कुमार गुप्ता साढ़े पत्रकार साढ़े नाल सीधे तौर पर जुड़ गए ने। राम, किस किस एंगल से जांच की जा रही है? सबसे पहले तो ये बताइए ताज़ा अपडेट क्या है? आपको बताना चाहूंगा, रात के 2 बजे के लगभग चोरी करने के इरादे से उनके बेटे के कमरे में, बांद्रा का जो घर है, और उसमें चोर घुसा हुआ था। जब लड़ाई की आवाज सुनी तब सैफ अली खान कमरे में घुसे। चोर के बीच हाथापाई हुई और जब सैफ अली खान के ऊपर चोर ने चाकू से हमला कर दिया, जिस पर उनके शरीर पर कई बार आए और जब घायल अवस्था में सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनका सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान जो चोट था उसमें मलहम पट्टी करने के बाद अभी भी वो लीलावती हॉस्पिटल में है। और लीलावती हॉस्पिटल में जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और लीलावती हॉस्पिटल में पहुंची पुलिस सीसीटीवी और तांत्रिक विश्लेषण के माध्यम से आरोपी की जांच कर रही है कि कौन है आरोपी जिन्होंने इनके घर में घुसकर चोरी करने के इरादे से जो चाकू लेकर के हमला किया था। कौन लोग हैं, कितने लोग थे, इसकी जांच क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस कर रही है। जी, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि राम, अभी सफल सर्जरी हुई है, डॉक्टर्स का ये पहला जो प्राथमिक बयान सामने आया कि सफल सर्जरी की गई है, जो टुकड़े सैफ अली खान की पीठ पे चाकू के थे वो निकाले गए हैं। तो कब तक मुमकिन है कि पूरा मेडिकल बुलेटिन जारी हो पाएगा? अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है सैफ अली खान और डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन बताना चाहूंगा कि चाकू की वार से कई गंभीर चोट आई हुई थी और कई जगह टाके लगे हुए हैं। तो जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जहां पर गंभीर चोटें लगी हुई थी, उसकी सर्जरी की गई है। सर्जरी करने के बाद उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टरों की तरफ से कोई बयान बाहर नहीं आया है, क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े हैं इस चीज के लिए कि सैफ अली खान की हालत कैसी है। अभी तो कोई बयान नहीं है, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि जो गंभीर चोट है अभी वो घायल अवस्था से बाहर है। जी,
और देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है राम कि किस तरीके से ये हमलावर जो है वो सैफ के बंगले में दाखिल हुआ होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है उसमें यही आया है कि एसी के डक्ट से ये हमलावर सैफ के बंगले में दाखिल हुआ। तो किस तरीके से जांच की जा रही है? बांद्रा का जो इनका फ्लैट है, उनके बेटे के कमरे से जो एसी का डक्ट था उसके माध्यम से चोरों ने घर में एंट्री की। एंट्री करने के दौरान जो उनके बेटे हैं उनके जहांगीर के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने के बाद सैफ अली खान जब कमरे में गए तो जो चोर थे, जो हमलावर थे, उन्होंने धारदार हथियार से सैफ अली खान के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कई जगह उनको चोटें आई और गंभीर चोट लगी। जिसके बाद अब उन चोरों के साथ जो हमलावर थे, कौन थे, कहां से थे और कितने लोग थी, इसकी जांच मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से, साथ ही साथ जो घटना स्थल है, जो फ्लैट है, उसके आसपास की जो सीसीटीवी है उससे जांच कर रही है। बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ की सीसीटीवी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया? जाहिर तौर पर सैफ के घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, तो किस तरीके से उसकी जांच हो रही है? कहाँ कहाँ के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल किए? मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्लैट है, फ्लैट के जो अंदर का एरिया है, एरिया के अंदर भी सीसीटीवी लगे थे। रोड के आसपास के जो इलाके, कहाँ से आने के चांसेस है और कहाँ से जो हमलावर है बाहर निकल के गए होंगे, उस सभी रास्तों के जो सीसीटीवी है उसको मुंबई पुलिस ने कलेक्ट किया है और सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और किस इरादे से फ्लैट में घुसे हुए थे। जी राम, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। राम कदम जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम कदम जी, अक्सर अब ये आम हो गया है कि बॉलीवुड अदाकारों पर हमले हो रहे हैं, इस तरीके के हमले सरेआम सामने आते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। देखिए, दो प्रमुख बातें उभर करके आती हैं जिसे हमें स्वीकार करना होगा कि इस पर्टिकुलर विषय में ये जो चोरी करने के मंशा से वहां पर आया हुआ व्यक्ति है और जब घर में बाकी लोगों ने उसे देखा और आपसी झड़प में वो खुद भागते समय सैफ अली के ऊपर पीठ पर उन पर कुछ इंजरीज हुई, इस प्रकार की बातें पुलिस की जानकारी के अनुसार सामने आ रही है। उसकी मंशा रॉबरी की थी, ये पहली जानकारी आ रही। अब वो कहां से घुसा, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, उसने उसको कैसे छोड़ा, दरवाजे से आया, खिड़की से आया, ये सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दल, विशेष करके उबाटा वाले कुछ नेता, अलग अलग टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ टिप्पणी कर रहे हैं। ये वही नेता है, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिस्टर वाजे को कह रहे थे वो कोई लादेन नहीं है। ऐसा कौन कह रहे थे? उद्धव ठाकरे, जो 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा था। यानी हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो घटी घटना वो बड़ी निंदनीय है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। पुलिस को पूरी तरह से आदेश दिए गए हैं और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, ये हमारा प्रमुख प्राधान्य होगा। पर जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को ओछी राजनीति की ओर ले जा रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है। पूरी तरह से जो भी होगा उससे हम बचेंगे नहीं। जेल की सलाखों के पीछे कुछ घंटों के भीतर वो होगा। लेकिन जनता में आप विश्वास किस तरीके से बना पाएंगे कि जनता सेफ है, जब इतने बड़े बॉलीवुड स्टार ही सेफ नहीं है? चाहे वो आप बाबा सिद्दीकी की बात कर लीजिए, मुंबई में लोग अपने आप को सेफ फील कैसे करेंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं, बाबा सिद्दीकी वाला मामला पूरी तरह से अलग है, यह मामला पूरी तरह से अलग है। बात तो सेफ्टी की है ना सर, बात तो यहाँ सेफ्टी की हो रही है। नहीं, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, पर इस मामले में जो आरोपी है उसकी मंशा चोरी की। अब चोरी की है, वो गार्ड ने छोड़ा, कैसे छोड़ा, लूप होल से आया, उनके घर में किस प्रकार की स्थितियां है, घर के नौकर चाकर क्या, वो कई सारे बिंदु है। जब खंगालने के बाद, तफ्तीश के बाद वो सारे बिंदु सामने आएंगे। उसके पहले कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पर हमारा सबसे पहले प्रमुख दायित्व यह है कि इस प्रकार की घटना न घटे और जिसने की है उसको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे भेजे और हमारी सरकार जिसको माफ नहीं करे। जी, लेकिन इस तरह की घटना ना घटे उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? सवाल फिर वही आता है कि मुंबई के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करें? देखें, पूरी तरह से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है,
अब वो पूरी पुरानी सरकार नहीं रही उद्धव ठाकरे वाली। अब ये जो घटनाएं घट रही है उसके पीछे क्या कारण है, कौन लोग हैं, अब यदि कोई गैंग है तो सबका पूरा पर्दाफाश होगा, सबको नेस्तनाबूद किया जाएगा। पर आम आदमी की सुरक्षा ही हमारा दायित्व है और उसका हम निर्वहन करें। आखिरी सवाल राम कदम जी, क्या मुंबई में आम से खास लोग सेफ हैं? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ। आप यहाँ पे दिन में रात में बिल्कुल महिलाओं के साथ अपने परिवार के साथ घूम सकते हो, बिल्कुल सेफ है। ये जो घटना घटी इसका कोई समर्थन नहीं हो सकता, पर एक घटना से आप पूरी तरह से उसको जोड़ दो कि मुंबई और महाराष्ट्र सेफ नहीं है, जो विपक्ष कर रहा है, लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि जनता जहाँ भी रहे वो सेफ रहे, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो जाहिर तौर पर जिम्मेवारी वहाँ के लोकल प्रशासन की, पुलिस की और सरकार की आती है, क्योंकि कोई मामूली हस्ती नहीं, सैफ अली खान बहुत बड़ी हस्ती हैं और जब वही सेफ नहीं है तो लोगों के मन में डर उत्पन्न होना लाजमी है। राम कदम जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।